Jai Hind everyone, my name is Shubham Tiwari. I live in Patna of Bihar. I have completed schooling from state board. Currently, I am pursuing graduation. My father name is Mr. Neeraj Kumar Tiwari and my mother name is Mrs. Veena Devi. I am one of 4 siblings and my hobby are playing volleyball, listening music and reading book. I want to join Indian Air Force because it gives adventurous life and I fascinate about this uniform. I want to touch the sky with glory and serve the nation. This is my brief introduction about me. Thank you very much to listen carefully. Good morning, gentlemen. My name is Rishi Kumar. I belong to district Vaishali, Bihar. My qualification is to pass my passing year in 2020. I have to passing college name is MS RDS Ismailpur, Vaishali, Bihar. My hobby is playing cricket and my father is farmer and my mother is homemaker. I want to join Indian Air Force as a airman because it is my childhood dream. I want to serve the nation. Good evening, respected sir and my dear friend. My name is Rishi Kumar. I am from Amroha, Uttar Pradesh, which is famous for Wasudhaiv Temple. I have completed my 2020 and secured 85%. Currently, I am pursuing my graduation BSc stream from IMS College. My hobbies are reading, writing, and creativity. Also, I want to join Indian Air Force because it is only an adventurous life, but also an opportunity to serve my nation with glory. Hello, gentlemen. Good morning to all of you. Thank you for giving me a golden opportunity to introduce myself. I am Avinash Arlo. I belong to district of UP. In my educational qualification, I am pursuing this second year. I completed class 12 in 2019. My father is farmer. My hobby is playing cricket and reading books. I want to become joint Air Force because it is my dream and most respected job in our Indian society. I want to touch the sky with glory. Now I am going to discuss my topic. My topic is that reservation system in India good or bad. Reservation system is a good in India. Reservation system allow backward class. The politician or what really politician they next. Hello. Whenever I get a spare time, I like to play cricket and volleyball. Now I will start my today's topic is point of view. Reservation is good for our country because many people who have comes from the below poverty is. Next. Jai Hind everyone. My name is Amit Kumar. I belong to Bhojpur district and I am pursuing graduation from Bir Kumar Singh University and my hobbies are playing cricket and chess. As well, I want to join Indian Air Force because my childhood dream and serve the nation. Indian system in reservation of the casted in society, no development in this way. And many as a student also I want to remove it because many students have lost their opportunity to select in government sectors and private sectors also because of reservation. Thank you. Not trying to close this like a reservation system in India. In the reservation is starting from the Britain. Britain is PMO because there is many discrimination which we held in our country. In India also this like reservation will be also. I agree in this way. The clause in this way India reservation system. Reservation provided in India government quota 60 for 7.5%, OBC for 27% and EWS for 10%. Total 60% and 40% of merit. As we know that government also improve reservation. As we know, it's 103 constitution by 103 constitution amendment. Government should improve 10-year more reservation for SC, STs and OBC. And now in general also there is a category of EWS. Government what is done by government? Government look us as a only eyes of their voting system. No, government should not take care about this. Okay, stop. एनालिसिस करने का उद्देश्य यही है कि आप सच्चाई से अवगत होइए। डोंट टेक इट लाइक बट इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर।
इतने दूर से आए हैं, पेरेंट्स ने भेजा है, कुछ बातों का आपको 78 जीडी में आपने भी थोड़ा बेटर किया, लेकिन नरेशन आपका भी बड़ा बेटर, लेकिन नरेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इनकी अगला इसकी रिकॉर्डिंग तुम लोग भेज दूंगा तुम्हारे पेरेंट्स को, किसी पे स्टेटस देखिए क्या निकल लेंगे सब आराम कर मारे यहाँ बैठ। उसके अगला व्यक्ति तो आपका भी चेस्ट नंबर नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इस बात की है कि इस बैच में से आप लोगों में से 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे तो ऐसे हैं जो 60 सेकंड की नरेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाए। 7 स्टूडेंट्स। चेस्ट नंबर 189 आप केवल 20 सेकंड में अटक गए। चेस्ट नंबर 109 आप बीच में अटक गए। 175 आप 40 सेकंड से ज्यादा नहीं बोल पाए। 104 आपने टाइम तो पूरा किया लेकिन बड़ा खींच कर पूरा। क्लास में प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही क्या बेटा? ऐसे करोगे यार, आप इंट्रोडक्शन तक नहीं कंप्लीट कर पा रहे। एक आपके पास मौका मिला है टू प्रूव योर पर्सनैलिटी, बिकॉज मे बी एक चीज सर इनकी अच्छी लगी, दे डोंट क्रिएट फिश मार्केट। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो बोला ही नहीं तो फिश। एक चीज अच्छी लगी आप लोगों की मुझे, एंड दिस इज अ गुड एटीट्यूड, बट दूसरा प्रोस्पेक्ट भी दिखाई देता है वहां बैठ करके। फिश मार्केट ना करते हुए अगर सबने आकर के अपने विचार रखे होते तो कितना अच्छा, और मौका मिल रहा था, सबको स्पेस मिल रहा था। बट तो मैं निचोड़ समझ गया था प्रॉब्लम कहाँ आ गई है। प्रॉब्लम तो रिजर्वेशन में आ गई थी। किसमें आ गई थी कि सब वी वर नॉट क्लियर अबाउट द थॉट्स, दैट वाज द प्रॉब्लम। 8 बच्चे 50 सेकंड के पहले चुप हो गए। 50 सेकंड्स के पहले नरेशन के दौरान। बट आई नीड टू डू हार्ड वर्क। ये टेस्ट, ये एनालिसिस करने का उद्देश्य यही है कि आप सच्चाई से अवगत होइए। डोंट टेक इट लाइट बेटा, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन शोल्डर। इतने दूर से आए हैं, पेरेंट्स ने भेजा है, कुछ बातों का आप लोग गहराई से क्या करिए, समझिए। बच्चा नहीं अच्छा हुआ जितना अच्छा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ बैठ के। इवन इससे पहले वाला ग्रुप बेटर था सर, दे विल हैव मोर एनर्जी। थक गए हो क्या सुबह से? हाँ, थकना भी मत। सुबह 5 बजे पहुँचो और रात तो कितने बजेंगे पता? ये है सच इंडियन एयरफोर्स का। तो अभी तो 5 बजे आए हो, 12 भी नहीं बजा। 12 भी नहीं। हम तो उसका आधा टाइम में नहीं पहुंच पाए। क्या नहीं पहुंच पाए? आधा भी टाइम नहीं पहुंचे हैं अभी। ये हाल है। और यहाँ पर फ्रीडम थे बीच में बाहर जाने की, और यहाँ तो फ्रीडम भी मिल रही थी कि बाहर हो आओ, नाश्ता कराओ, घूम आओ। वहाँ ये भी नहीं मिलने वाला है, इतना प्रेशर रहता है। पहले चिल हो जाओ बेटा। देखो मैं समझ गया था पहले ही, जैसे रिजर्वेशन टॉपिक आया आपका हाथ पैर क्या हो गया, फूल गया उसी पॉइंट पे, बिकॉज योर थॉट्स वर नॉट क्लियर। असल प्रॉब्लम जो आपके पास है ना बेटा, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ड्रीम में जी रहे हो और वहां पहुंचोगे, टॉपिक आएगा, आप में चमत्कार होगा, सुपरमैन अंदर प्रवेश करेगा और बोलना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है भाई नहीं। ये क्लियर कर दूं पहले। और एक बात और सुन लो, अगर इस बात को लेके माइंडसेट आपने बना रखा है कि आपके बजाय कोई और बोलेगा, तो आप गलत फहमी में हैं। अगर आपने ये माइंडसेट बना रखा है कि जो टॉपिक, जो मुद्दे हैं, आपके अलावा कोई और उनको क्लियर करेगा, उनको अंडरस्टैंड करेगा, तो आप फिर से गलत फहमी में हैं। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बना हुआ है कि टॉपिक ऐसे आएगा और ऐसे ही क्या होगा, हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होएगा। और आज का ये झटका एहसास आप लोगों को दे दिया होगा कि सर हम चाह तो रहे हैं बट हमारे पास विचार ही नहीं है। सर पहला दिक्कत आया थॉट्स का। किसका दिक्कत आया? चलो थॉट्स भी हैं सर, तो 2 लाइन अंग्रेजी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से हम फिनिश करें। क्यों? क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं। एंड until unless you will not write with your own capacity, you will not speak in the group. अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे, खुद से नहीं टॉपिक को समझेंगे, तो आप खुद से कैसे बोल पाएंगे? जैसे मान लीजिए रिजर्वेशन मुद्दा है, क्या अगर 4 अच्छी डिबेट इस पे आप सुने अंग्रेजी भाषा में बैठ करके, तो कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा आपका? अब क्या आपके बजाय कोई और सुनेंगे क्या उस जगह? और भाई तुमको एज ए कॉम्पिटिटर मैं ये बात बताता हूँ, गुरु के तौर पे नहीं बताता हूँ, मैं पढ़ाने भी आता हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने कितनी आसान भाषा में यूट्यूब पे बताया हुआ है, उसके बावजूद बहुत लोग मालूम नहीं कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन जोड़ जोड़ के बोलते हो तुम लोग। ऐसा लगता है जैसे वो रोबोटिक नहीं होता है, रटी हुई लाइनें। हमें तो आदत हो गई ना सुनते सुनते। फैक्चुअल बातें नहीं उठाई गई। 1932 में रिजर्वेशन में क्या था, फिर 89 में क्या हुआ, फिर 91 में क्या हुआ, फैक्ट्स ही नहीं थे।
सर इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं इन लोगों ने, सच्चाई तो ये है। सच्चाई ये है, इस टॉपिक के बारे में कभी कुछ किया ही नहीं है। फैक्ट इज दिस। तो मैं तो समझ रहा हूं ना उस बात को, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि उस टॉपिक पे आपका कमांड नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बच्चे ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है इस टॉपिक पे, तो ही वाज कॉन्फिडेंट। उस बच्चे ने भी थोड़ा कॉन्फिडेंट। आपका चेस नंबर क्या है? 199। इस बच्चे ने भी थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि इसने इस टॉपिक पे काम, इससे पहले आप रिपीटर है क्या? आप रिपीटर फ्रेशर है? गुड। आप कहाँ से बच्चा? अच्छा, आप कहाँ से बच्चा? अच्छा, प्रयागराज से। आप दोनों कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और अच्छे से थॉट प्रोसेस रखने की कोशिश कर रहे थे। 61 ने भी थोड़ा ठीक बोला। हाँ, 61 कौन है सर? चेस नंबर 61। इंट्रोडक्शन पार्ट वाज गुड, इंट्रोडक्शन, बट वो चीज़ डिस्कशन में नहीं मेरे को दिखाई दी। आई वाज एक्सपेक्टिंग यू विल कम इन गुड एटीट्यूड विद इन डिस्कशन। ही वाज गुड इन सर इंट्रोडक्शन पार्ट। चेस नंबर 132 क्या है? हाँ, 132। हाँ, ही वाज गुड इन इंट्रोडक्शन, बट डिस्कशन में नहीं निकल के आए। फिर आप क्यों? हाँ, एहसास हुआ कुछ? आज सुबह से जो चल रही प्रक्रिया, इसमें कुछ एहसास हो रहा है? क्या एहसास हुआ बताओ? ऐसे ही होता है, यहाँ तो बहुत चिल एटमॉस्फेयर है, वहाँ दबाओ 10 टाइम होगा। कौन गया इससे पहले? इसमें कोई रिपीटर है? नो रिपीटर? अच्छा, आप हैं सर। वहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए टाइम मिल जाता है? बिल्कुल नहीं सर। कितना दबाव हर समय अच्छा, आदमी हट भी तो नहीं सकता। पता चला किसी स्टेप पे गायब हो गए तो पता चला कि जो आउट कर दिए उस कारण से हमें। डॉक्यूमेंटेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है और कितना मानसिक और शारीरिक दबाव रहता है। थोड़ी सी भी गलती हो गई तो गए काम से, आप कोई सुनवाई नहीं है। तो जीडी तक प्रोसेस किए थे आप? चलिए, गलती से इंसान सीखता है, लेकिन इनकी गलती से अगर आप सब सीख लें तो आपसे वो गलती नहीं होगी। इसीलिए दूसरों से भी कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। आज काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, बहुत अच्छे से रख रहे थे और इन्होंने ओवरऑल हमें इम्प्रेस किया। इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया और अच्छे से अपनी बातों को इन्होंने रखने की कोशिश की। यही तरीका हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए भाई? तभी तो सफलता मिलेगी। तो तुमको सीधा फंडा मैंने समझा दिया। रेस इसलिए नहीं निकली बेटा क्योंकि डेली तुम नहीं दौड़ते हो। मुझसे कोई रिजल्ट पूछना चाह रहा है तो मैं साफ साफ रिजल्ट दे रहा हूँ। दूसरा, एसआरटी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रॉब्लम क्या हुई? सर एसआरटी तो कर सब सही देते सर, उसमें कौन सा रॉकेट साइंस आया हुआ था, बट दिक्कत क्या हुई? टाइम नहीं मैनेज हुआ सर। जो गलत आप देख रहे हैं सब तुक्का मारा गया है सर। जहाँ तक पढ़ पाए वहाँ तक तो सही है सर, और उसके बाद हमने पढ़ना ही बंद कर दिया। टाइम ही नहीं, जब देख रहे 5 मिनट बचा है सर और टाइम नहीं है मेरे पास, तो वहाँ पे भगवान भरोसे सब चल रहा है सर, तो गलत ही होगा ना सर, उसमें कौन सा सही हो जाने वाला है। लेकिन पढ़ लेते सर तो एक गलत ना होता, इसलिए प्रैक्टिस आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। सही बात है जी ना? डोंट ट्राई टू डू दैट। 100% मारो। ये एक नेगेटिव फीडबैक को दर्शाता है कि आप छोड़ रहे हैं। हो सकता है उस क्वेश्चन से भी हम आपकी एक साइकोलॉजी समझना चाह रहे हों और कोई रिएक्शन ही नहीं मिला आपका हमको, तो हम क्या समझेंगे? हाँ, तो ट्राई टू डू 100%। कंक्लूजन के तौर पर जो बातें आप लोगों को याद रखनी है, सबसे पहली बात 60 सेकंड का स्पीकिंग स्टेमिना हर किसी का होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें जीडी के टॉपिक और इंट्रोडक्शन की परफॉर्मेंस रफ्तार लगभग एक जैसी होनी चाहिए। तीसरी बात, जीडी पर बोलते समय या नरेशन में करते समय बायस्ड बिल्कुल नहीं होना है। याद रखिए, हर टॉपिक में जरूरी बात नहीं है कि आप केवल वन साइड चलें। आप उसकी सामने वाले के पक्ष की बुराइयों को सुधारते हुए अपने पक्ष में उसके पक्ष को मिलाकर अपनी बात रख सकते हैं। किसी की लकीर काटनी नहीं है, बस अपनी लकीर और बड़ी करनी है। मतलब किसी के विचारों को काटने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। एज यू आर सेइंग, यू राइट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट बस इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है? ग्रुप कोऑपरेशन फैक्टर दिखना चाहिए। जैसे आप अकेले बोले जा रहे हैं, अरे कोई और चाह रहा है उसको भी मौका दिलाइए। हाँ, ये भी सही है कि तुम लोग इतना रिलैक्स जोन में थे कि हाँ सर वहाँ पे बिल्कुल मतलब 1 मिनट का विचार नहीं होता जैसे यहाँ। अगले पिछले वाले ग्रुप में भी वही हाल। हाँ, पिछले वाले ग्रुप में भी वही हाल था, फिश मार्केट हो गया था। मौका ढूंढना पड़ता है, ढूंढना कब इसमें खत्म हो और हम अपनी बात वहाँ पे ले जाएं, या उसकी बात को जो है नोटिस करते जहाँ समझते हैं ये पॉइंट पे भी इसको पकड़ सकते हैं तो वहीं से जोड़ के अपना पॉइंट आगे लेके चलेंगे। जब पॉइंट बोलने लगे वो भी बोल रहा है तो क्या दोनों साथ में बोले तो सही है? ये डिपेंड करता है,
ये डिपेंड करता है कि उसके कंटेंट में कुछ काम की बातें हो रही हैं कि तुम्हारे कंटेंट में कुछ काम की बात। जहाँ काम की बात हो रही है कि लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सर एक मतलब स्टूडेंट था, तो उसको जब उसकी मतलब बात दब रही थी लेकिन उसके कंटेंट में दम था, बस फिर उसको 20 सेकंड दिए कि आप बोलिए, बोल लीजिए, क्योंकि सुनता रहता है ना, उसको लगा अगर इसका काम का बंदा है दिख रहा है, इसमें कंटेंट में दम है, मैं खुद ही चुप करा दूं। लेकिन हाँ हमको उतना सुनने, जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, मैं खुद सुनने लगता हूँ उसको बैठ के। अगर मुझे थॉट अच्छा लगने लगेगा तो भाई चलो 15 सेकंड इसको देते हैं, 20 सेकंड दे लेते हैं, उतने में उसका काम हो गया। तो अल्टीमेट सबसे ताकतवर क्या चीज है? कंटेंट होना चाहिए। वो नहीं है तो आप इंप्रेस नहीं कर पाए। बकवास कौन सुनता है बैठ के भाई? जैसे गौरव सर ने कहा था रिजर्वेशन की पॉलिसीज को जो चेंजेस आए, या भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जो बात कही थी इसको लागू करते समय, वो बात और आज की सिचुएशन को कंपेयर अगर कर रहे हो, थोड़ा ब्रॉडर स्केल पे फिर जाओ। बट सर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ये विचार किसी और से नहीं मिलेंगे, विचार खुद से ही क्या करने पड़ेंगे? डेवलप करने पड़ेंगे। और फिर अलग तेज होगा, अलग कॉन्फिडेंस, हेजिटेट पजिटेट नहीं होगे। फिर कहोगे मौका दो, बोलना है मुझे। फिर अलग लेवल का आदमी को जब जैसे किसी चीज़ का क्वेश्चन का सोल्यूशन पता रहे तो आप हेजिटेट होंगे कभी? कूदते रहेंगे जब तक बता नहीं लेंगे। हाँ, जब बता लेंगे तो फिर रिलैक्स, अच्छा ठीक अभी काम हो गया मेरा। हाँ चलिए, थोड़ा सा बेटा कंटेंट पे काम करिए, प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। हमारे लोग का उद्देश्य यही है कि हम जब टेस्ट करें तो हमें कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, और रिजल्ट्स हमारे बताने से ज़्यादा ज़रूरी बेटा कि आप महसूस करें, क्योंकि आप नहीं एहसास किए तो हम कितना भी रिजल्ट बताते रहेंगे, आपके जीवन में उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चा। तो आज मुझे लगता है कि एक अच्छा एहसास हुआ होगा आप सबको। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जाइए, जाके अभी खाना वाना खा के रेस्ट करिएगा आराम से, ठीक है ना? उठिएगा, सोचिएगा कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ रह गई, और आज से ही बेहतर शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है ना? सुबह दौड़ते हैं, कोई नहीं सर आज शाम को जाएंगे 2 किलोमीटर पीट के आएंगे सर राइट टाइम पे, ठीक है बच्चा? और ऐसा मत करना कि भाई एक ही दिन में 6 मिनट में कर लेना। अगर आपको लगता है कि लाइक 7 मिनट में हो रहा है सर, मेरा 7:30 में हो रहा है, तो कोशिश करना कि आज भाई 7:15 में हो जाए, 7 मिनट में हो जाए। फिर कल कोशिश करना 10 सेकंड पहले और हो जाए, नहीं तो इकट्ठा 2 मिनट घटाओगे तो फिर अगले दिन दौड़ने लायक ही नहीं रह जाओगे। डेली 10 सेकंड घटाओ, डेली 10 सेकंड घटा करके अपनी स्टेमिना को क्या करो? मेंटेन करो फिर। और एक दिन तो नहीं दौड़ना है ना, अभी तो तब तक दौड़ना है जब तक वहाँ फाइनली दौड़ क्लियर ना हो जाए आपके, ठीक है बच्चा? चलिए, नॉट ए इशू, ठीक किया आप लोगों ने, इतना भी बुरा नहीं है। बस ये है कि कुछ लोगों ने नहीं बोला, नरेशन में रुके, तो थोड़ा हम लोगों को दुख हुआ, और एहसास कर लीजिए आज से और जाके नए तरीके से मेहनत करिए, ठीक है बच्चा? चलिए, गुड लक टू ऑल। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।